ریاست بہاولپور کا ایک پرانا گاؤں احمد نگر، جہاں پر لوگ اپنی زندگی بالکل سادگی سے گزار رہے تھے۔ کہیں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کسی کے دل میں کوئی خوف پیدا کرتا، لیکن اسی گاؤں کا ایک ایسا پرانا اور ویران حصہ جہاں پر لوگ جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ وہاں کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ دن کے وقت بھی اس گلی کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس گلی میں ایک ایسا ویران مکان تھا جو کئی صدیوں سے خالی تھا۔ لیکن وہ مکان خالی ہو کر بھی خالی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری گلی ہی ویران ہو گئی۔ احمد نگر یوں تو بہت ہی زیادہ پرسکون گاؤں تھا۔ لوگ اس خوفناک حقیقت سے پہلے وہاں پر نارمل زندگی گزارتے تھے۔ اس گلی میں بھی ایسے بہت سے گھر تھے جو آباد تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور لوگوں کے دلوں میں وہاں کا خوف بڑھتا گیا، کیونکہ وہاں پر ایک ایسا گھر تھا جہاں پر بستے تھے 3 لوگ۔ وہاں پر ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے اوپر ایک آسیب سوار تھا۔ شروع میں تو وہ بالکل نارمل تھی، لیکن پھر آدھی راتوں کو اس گھر سے چیخو پکار سنائی دیتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی جو بیٹی ہے وہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے گاؤں کے قبرستان کے ویران حصے میں بیٹھا دیکھتے تھے۔ لیکن وہ سب کو یہی کہتی تھی کہ میں یہاں پر اپنی سہیلی کی قبر پر آتی ہوں۔ اس کی سہیلی جو کہ جوانی میں ہی مر گئی تھی، اس کے بعد وہ اپنی سہیلی کے لیے بہت رویا کرتی تھی اور اس کی قبر پر جا کر کئی گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے بہت سمجھاتے تھے کہ بیٹی گھر آ جاؤ، تم کیوں اپنی سہیلی کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہتی ہو؟ لیکن شائستہ ہمیشہ اپنی سہیلی کی قبر پر جا کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی۔ اب یہ دیوانگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ شائستہ رات کے وقت بھی قبرستان میں جا کر اپنی سہیلی کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ ایک رات شائستہ اپنے ماں باپ کو بتائے بنا قبرستان کی طرف چل دی۔ آدھی رات ہو گئی، ماں باپ کی آنکھ کھلی تو شائستہ گھر پر نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ قبرستان میں ہوگی۔ جب شائستہ کے ماں باپ قبرستان میں پہنچے تو وہ وہاں پر اپنی سہیلی کی قبر پر بے ہوش پڑی تھی۔ ماں باپ دیکھ کے ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ گاؤں میں بھاگے، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اور پھر لوگ جیسے ہی آئے، گاؤں کے لوگوں نے شائستہ کو بے ہوش پایا اور اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ جو ہی شائستہ کو ہوش آیا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ آسیب زدہ ہو چکی تھی۔ اس کے اوپر ایک ایسا بھیانک آسیب سوار تھا جو اس کی حالت دن بدن بگاڑ رہا تھا، یہاں تک کہ لوگ بھی ان کے گھر جانے سے ڈرنے لگے۔ جو ہی شام ہوتی شائستہ چیخنے چلانے لگ جاتی۔ ان کے گھر کے باہر ایک ویران درخت بھی تھا۔ وہ اکثر چلاتی اور کہتی کہ باہر والے درخت پر کوئی عورت ہے، مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اپنے آنگن میں لگے پرانے درخت کے نیچے بھی بیٹھ کر گھنٹوں کسی سے باتیں کرتی رہتی، لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ ماں باپ جتنا کر سکتے تھے اسے لے کر بہت سے بزرگوں کے پاس بھی گئے، لیکن وہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام کروانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اگر کسی نے میرے گلے میں کوئی تعویذ ڈالا تو میں سب کو مار دوں گی۔ پھر یہ چیز اس حد تک بڑھ گئی کہ ماں باپ بھی ڈرنے لگے۔ جب رات کو اسے دورے پڑتے تھے تو ماں باپ بھی ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر شائستہ رات بھر اپنے صحن میں بیٹھ کر اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی اور ایسی خوفناک آوازیں نکالتی تھی کہ اس کے ماں باپ بھی اسے دیکھ کر ڈرتے اور روتے تھے۔ بعض اوقات وہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ برا بھلا کہتی تھی، گالی گلوچ کرتی تھی۔ گاؤں والوں سے پہلے ہی ان کے گھر میں آنا بند کر چکے تھے۔ گاؤں والے اکثر شائستہ کے ماں باپ کو کہتے تھے کہ اس کو کسی سید صاحب کے پاس لے کر جاؤ، کسی سید صاحب کے پاس جائے گی تبھی یہ آسیب اس کی جان چھوڑے گا، ورنہ اس کی حالت دن بدن اور بھی خراب ہوتی جائے گی۔
और वही हुआ। शाइस्ता अब दिन भर घर के एक वीरान कमरे में बंद रहती और अंदर रोती, चिल्लाती और चीखें मारती रहती। माँ बाप तंग आकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते। एक रात एक भयानक हादसा हुआ। शाइस्ता का आसिफ उस पर सवार था। उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने उस कमरे का पुराना दरवाजा भी तोड़ दिया और बाहर निकलकर अपने ही माँ बाप को जान से मार दिया और उनका खून चाटने लगी। घर से खौफनाक रोने की आवाजें आने लगी। सुबह जब हुई तो वो चिल्लाने लगी कि मेरे माँ बाप को किसी ने मार दिया है। गांव वाले डरते डरते घर में दाखिल हुए तो उसके माँ बाप की लाशें पड़ी थीं। अब गांव वाले बहुत डर गए। कोई भी उस घर में आने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों ने जैसे कैसे उसके माँ बाप को दफना दिया। फिर शाइस्ता उस घर में अकेली ही रह गई। कुछ अरसे तक तो शाइस्ता की रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो आवाजें आना बंद हो गई तो गांव वाले भी बहुत डर गए। गांव वालों ने जैसे ही उस घर की दीवार से झांक कर देखा तो शाइस्ता अपने घर के बाहर वाले दरख्त के ऊपर लटकी हुई थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। फिर शाइस्ता को भी गांव वालों ने डरते डरते उस घर में जाकर उसकी लाश को उतार कर दफना दिया। 3 लोगों की मौत। हंसता बसता वो घर बिल्कुल एक वीरान कब्रिस्तान की मानद बन गया। जो ही 11 दिन गुजरे उस घर से खौफनाक आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था कि रात भर शाइस्ता घर में बैठी रोती रहती है। गांव वालों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता था। फिर एक दिन एक गांव वाले ने हिम्मत की और झांक कर जब उस घर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर में लगे दरख्त के नीचे शाइस्ता बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ चुका था। आंखें चमक रही थी और चेहरा बेहद हैबतनाक था। वो आदमी इतना खौफजदा हुआ, दीवार से उतरा, गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो चीखो पुकार करता अपने घर भागा। अगली सुबह पूरे गांव में खौफ फैल गया। पूरे गांव में डर फैल गया कि ये क्या, शाइस्ता तो मर चुकी थी और गांव वालों ने उसको दफना भी दिया था। फिर ये कौन थी जो रात को उस वीरान घर में, उस बंद घर में बैठी रोती रहती है। सब बेहद परेशान थे। फिर एक बुजुर्ग को लाया गया। वो बुजुर्ग उस घर के अंदर तो दाखिल नहीं हुए, उन्होंने घर के बाहर ही खड़े होकर पढ़ाई की। उनका ये कहना था कि इस घर में एक भटकती बदरूह है, एक चुड़ैल आफत है जो उस लड़की का रूप लेकर अब तुम लोगों को निशाना बनाने के लिए आई है। उसी आसेब ने, इसी चुड़ैल आफत ने उन सब घर वालों को मार दिया है। शाइस्ता का रूप धार कर उस रात शाइस्ता के माँ बाप को भी उसी ने मारा था। लेकिन अब वो यहाँ पर मुकीम हो चुकी है, यहाँ पर बसेरा कर चुकी है, क्योंकि इस घर में उसने 3 लोगों की जान ली है। इतनी आसानी से ये चुड़ैल आफत यहाँ से नहीं निकलेगी। बेहतर यही है कि आप सब लोग इस घर से दूर रहें। उस गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगे। वाकयात अब पहले से ज्यादा बढ़ने लगे। जो ही रात का पिछला पहर होता तो गली में बने दूसरे घरों पर दस्तक होना शुरू हो जाती। वो शाइस्ता का रूप धारे शाइस्ता की आवाज में गांव के लोगों को पुकारने लगी। कभी किसी का नाम लेती, कभी किसी का नाम लेती। ज्यादातर जिस घर में लड़कियां होती, जवान लड़कियां, उस घर में जाती और उनके नाम ले लेकर रोती, उनको पुकारती। गांव वाले बहुत डर गए और फिर उन लोगों ने वहां से अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उस गली में सिर्फ और सिर्फ 2 मकान आबाद रह गए। बाकी उस गली के सारे मकान वीरान हो गए। जिस घर में उस भयानक चुड़ैल का बसेरा था, वो घर, उसके साथ वाला घर और उसके सामने वाले 3 घर, वो सब वीरान हो चुके थे, क्योंकि ये चुड़ैल रात को उन्हें बहुत सताती थी। और लोगों का ये कहना था कि ये चुड़ैल छत के ऊपर भागती है, कभी घर के दरवाजों पर दस्तक देती है, नाम पुकारती है। हमें डर है ये हमारी बेटियों को भी जान से मार न दे। इस तरह जब वो 2 घर जो आबाद रह गए थे, उनकी भी बारी आ गई। वो चुड़ैल आफत शाइस्ता का रूप धारे रात के पिछले पहर में उनके दरवाजे पर दस्तक देती और कभी अपना नाम शाइस्ता बताती तो कभी अपना नाम बतूल बताती और ये कहती, दरवाजा खोलो, मैं मिलने आई हूँ, तुम लोगों से मिलने आई हूँ, दरवाजा खोलो, मेरे घर चलो, तुम लोग मेरे घर क्यों नहीं आते?
वो लोग भी इस हद तक खौफजदा हुए कि वो आखिरी 2 मकान भी वीरान हो गए। वो पूरी गली उस खौफनाक भयानक चुड़ैल की वजह से वीरान हो गई, जो रात भर उस कच्चे टूटे मकान में बैठी अपने बालों में कंघी किया करती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा। लोग उस गली में आना जाना बिल्कुल कम कर चुके थे, यहाँ तक कि उस गली में अब कोई जाता भी नहीं था। लोगों का ये मानना था कि रात को गांव के सभी कुत्ते इकट्ठे होकर गली के कोने पर खड़े होकर उस घर को देखकर बेतहाशा भौंकते हैं। उस घर का खौफ लोगों के दिलों पर बहुत ज्यादा तारी हो चुका था। गांव के लोगों ने कहा कि इस तरह तो हम जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अभी इस चुड़ैल आफत ने एक गली वीरान की है, कहीं हमारा पूरा गांव ही वीरान ना कर दे। फिर उन सब ने मिलकर दूसरे गांव से एक सैयद साहब को लाने का फैसला किया। फिर सैयद साहब को उस गांव में लाया गया। सैयद साहब जब आए तो पांव रखते साथ ही उनका ये कहना था कि इस गांव के ऊपर एक भयानक आफत सवार है, जिसने यहाँ के बहुत से लोगों को यहाँ से निकाला भी है, जिसका आसेब इस गांव की फिजा में फैला हुआ है। अगर इस चुड़ैल आफत को रोका ना गया तो ये पूरे गांव को वीरान कर देगी। फिर उन सैयद साहब ने शाइस्ता के उस वीरान चुड़ैल वाले घर में जाकर अमल किया। कई महीनों के बाद उस वीरान घर का ताला खुला। जब सैयद साहब अंदर दाखिल हुए तो उस घर से खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा कि कोई औरत कहीं दूर सिसकियों में रो रही है। सैयद साहब अल्लाह वाले थे। उन्होंने वहां पर जो ही बैठकर अमल किया तो आसपास के सभी वीरान घरों से चीखों पुकार शुरू हो गए। वो कई रूप धारे उन घरों में भी अपना बसेरा किए हुई थी। सैयद साहब पढ़ाई करते गए और एक एक घर से वो चीखों पुकार आना बंद हो गई। यहाँ तक कि गली के सभी मकानों में खामोशी छा गई, सन्नाटा छा गया। उसके बाद सैयद साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बिलाखिर उस मखलूक के सभी रूप, उस चुड़ैल आफत के सभी रूप शाइस्ता के उस पुराने खंडरनुमा मकान में ही जमा हो गए। ऐसा लग रहा था कि शाइस्ता के उस पुराने कमरे में, जहां पर वो दिन भर और रात भर बैठी रोती रहती थी, कई औरतें हैं जो उस कमरे में बंद बैठी बैन कर रही हैं और रो रही हैं। सैयद साहब ने अपना अमल जारी रखा और उसी सहन में एक गड़ा खोद कर सूखी लकड़ियां रखवाई। पढ़ाई करते गए और कमरे का दरवाजा उठकर खोल दिया। ऐसा लगता था कि आग के छोटे छोटे शोले उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं और एक एक करके उस आग में कूदते जा रहे हैं। ये वही सारे भयानक उस चुड़ैल आफत के रूप थे जो गली के सभी घरों को वीरान कर चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस पूरे गांव को वीरान कर देना था। बिल आखिर एक काले रंग की परछाई, एक काले रंग का साया उस पुराने कमरे से नमूदार हुआ। वो सिसकियों में रोता रोता उस आग के करीब आया और एक भयानक चीख के साथ उस आग में कूद गया। सैयद साहब ने अमल पूरा किया, उठे और फिजा में हिसार बांधा और उस घर का दरवाजा बंद करके उसके ऊपर कुफल लगा दिया और कहा कि कभी भी इस घर का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। वो जो भी मखलूक थी उसे मैंने इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। अब वो इस गांव में और इस गांव के बाकी घरों के आसपास भी नहीं जा सकेगी, लेकिन कोई भी गलती से इस घर में नहीं जाएगा। अगर इस चुड़ैल आफत को मैं इस घर से भी निकाल देता तो शायद ही इस गांव को वीरान कर देती, क्योंकि ये जहां कहीं भी बसेरा करती वहां से ये बदला लेने वापस जरूर आती। लेकिन जहां पर इसने ये सब किया था मैंने उसी जगह पर इसको कैद कर दिया। उसके बाद सैयद साहब तो वहां से वापस चले गए। गांव के सभी लोग जो उन घरों को छोड़कर गए थे अपने घरों में वापस आ गए। अब वो अपने घरों में सुकून से तो रह रहे थे, लेकिन एक खौफ उनके दिल दिमाग में अभी भी बना हुआ था, क्योंकि जब भी रात का पिछला पहर होता था शाइस्ता के उस वीरान मकान से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आती थी और कभी चूड़ियों के खनकने की आवाज आती थी। कई बार लोगों ने अपने घरों की छतों से देखा वो आज भी उसी वीरान घर में उस पुराने दरख्त के नीचे बैठी अपने बाल संवारती रहती थी। अब वो अपने असली रूप में थी। वो जला हुआ खौफनाक चेहरा, वो लाल लिबास, वो लंबे और खौफनाक उलझे हुए बाल, और उनमें वो बैठी जब अपने बालों में कंघा करती थी तो देखने वाले सब डर जाया करते थे। अगर किसी की गलती से भी दूर से भी उस पर नजर पड़ जाती
तो वो गुनगुनाना और ऊंचा कर देती और देखने वाला कई दिन बीमार रहता। ये कहानी थी अहमदनगर के उस खौफनाक मकान की जिसका खौफ सालों तक लोगों के दिलों में राज करता रहा। ये कहानी नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। वो लोग जिन्होंने अपने दौर में उस मकान को देखा था, वो लोग जिन्होंने अपने दौर में इस खौफनाक हकीकत को देखा था, वो अपने आने वाली नस्लों को ये समझाते गए कि कभी भी रात के कब्रिस्तानों में नहीं जाना, कभी भी रात के वक्त किसी कब्र पर बैठकर नहीं रोना, क्योंकि कब्रिस्तानों में शाम के बाद जिन्नात का बसेरा होता है। कब्रिस्तानों में शाम के बाद जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं और फिर जो कोई भी वहां पर जाता है और देर देर तक बैठकर बैन करता है, रोता है, पास औकात वो मखलूकात हावी भी हो जाती हैं। ये कहानी थी अहमदनगर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल की कहानियों को ऐसे ही लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसे ही खौफनाक कहानियां मैं लाती रहूंगी।